Yes. Another important question is ki how to classify whether any commodity, any item or good is an intermediate or final good. That depends upon the purpose of use, or we can say that depends upon end use of the product. End use का मतलब who is going to be the ultimate person to use that commodity. जैसे for example, let us take example of milk, very simple household commodity that is why easy to understand. So if milk is used by, consumed by consumers, we people, households, we use that. So then it is known as final good. क्योंकि end purpose क्या है? उसको utilize कर लेना, उसको पी लेना या consume कर लेना अपने घर में. That is the end purpose. So it will be known as a final good. But if that milk is used by a sweet maker, कोई हलवाई उसको use करता है, then the purpose of that sweet maker is not to finally use that commodity. Rather, his purpose is to make some other sweets with the help of that, या some other eatable with the help of that milk, और उसको फिर वो बेचना चाहता है. So that means that commodity will be considered as intermediate for him. कि वो जो स्वीट मेकर है, he is not purchasing milk for his direct consumption. Rather, his intention is to produce something else which he wants to sell to other people. That is why he is purchasing milk. So for him, that same milk will be known as intermediate commodity. Okay, so ultimately it depends upon the end use, or ultimately we can say last purpose किसका है, purpose of use क्या है. तो purpose को ही बोल देते हैं end use of the product. It depends upon this. Okay, this point was there. Then we started this consumption goods. This point was over. Let us call quickly. Consumption goods means those goods which are used by consumers for the satisfaction of their wants directly. Then four types, I am just recalling because this is already done. Four types of consumption goods are there: durable, semi-durable, we can say. Then third one, this perishable goods or non-durable. You can write this word non-durable के साथ में. Non-durable goods are also known as perishable goods. Okay. And last one was services. So four types of varieties of consumption goods can be there, which are used by us at one or the other time. जरूरी नहीं है कि इन सारी चीजें एक ही टाइम keep on consuming. At one point of time in our life we make use of one commodity. Second time we are using some other type of commodity. So it depends upon the use. कभी भी क्या चाहिए तो उसके ऊपर depend करता है. Next, the most important part which is to be started. So all need to be very attentive and alert. That is capital goods. But before coming to capital goods, you all are requested to prepare this chart. Please write down quickly on your notebook. Producer goods. Capital goods के ऊपर we cannot come directly. We need to understand this concept first. So please draw producer goods. फिर producer goods are further of two types. One is called single-use producer goods. Single-use producer goods. And second type is capital goods. Hope all are writing fastly. One type is single-use producer goods. Second type is capital goods. Okay. जो single-use producer goods है, below this we can write raw material. And here machines or fixed assets. Please write single-use producer goods or raw materials, and capital goods, they are mainly machines or fixed assets. Now let us understand किसका meaning क्या है. It would be better if you keep your videos on so that I can see you also. Yes. So अब इसका meaning क्या है? That's better. So पहले है producer goods क्या होती है? It is clear from the name itself. Producer goods means those goods which are used by producers. है ना? As we said, consumption goods are those which are used by consumers. So same way we can define on the same pattern. Producer goods are those goods which are used by producers. तो कौन होते हैं producers? Producers मतलब those people, those manufacturers who convert the raw materials into some final outputs. कुछ भी बनाते हैं जो किसी चीज में यूटिलिटी ऐड करते हैं, इंपॉर्टेंस ऐड करते हैं, those people are known as producers. तो अब नाउ प्रोड्यूसर जो होते हैं यूज ऑफ मेनी कमोडिटीज, कई तरह का सामान वो यूज करते हैं.
Now, on the basis of nature of the things they use, these goods are classified into two parts. One is single use. अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? रॉ मटेरियल. आप सोच के देखिए, विदाउट एनी रॉ मटेरियल इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग? आप प्रोड्यूसर हो, रॉ मटेरियल आपके पास है नहीं, आपको कि मैं फैक्ट्री चलाऊंगा, तो खाली मशीनें तो नहीं चला सकते. मशीन के अंदर कुछ रॉ मटेरियल, कोई सामान डालोगे तो ही कुछ बनेगा. ठीक है, तो इसका मतलब जो रॉ मटेरियल्स हैं, विदाउट रॉ मटेरियल वो नथिंग कैन बी प्रोड्यूस, वो चीज बनाई नहीं जा सकती. ठीक है, अब जो रॉ मटेरियल होते हैं उनका क्या, व्हाट इज देयर पर्टिकुलर फीचर? फीचर इज कि इन द सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन दे गेट यूज्ड अप. उनको यूज कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जेसीटी मिल में कॉटन टेक्सटाइल इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. तो जो रॉ कॉटन है जो उसमें डाली जाती है, तो रॉ कॉटन डाल के उसका मान लो थ्रेड बना रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, थ्रेड बना रहे हैं, यार्न बना रहे हैं, तो वो रॉ कॉटन अपनी शेप खो देगी, है ना. वो अपनी उसी फॉर्म में नहीं रहेगी रॉ कॉटन जिस तरह से वो है. तो वो रॉ कॉटन विल गेट यूज्ड अप. तो अब यूज्ड अप का मतलब वो रॉ कॉटन क्या थी? वो हमारे लिए रॉ मटेरियल थी. तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड हो गई रॉ मटेरियल्स, जो जैसे ही प्रोडक्शन करती है वो यूटिलाइज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब अपनी उस शेप में नहीं रहती है. तो इस करके दे आर नोन एज रॉ मटेरियल्स या सिंगल यूज प्रोड्यूसर. now they are very important because they in the absence of raw material कुछ भी बनाया नहीं जा सकता. सेकेंडली, दूसरी चीजें कौन सी होती हैं? कैपिटल गुड्स. नाउ एज आई सेड कि रॉ मटेरियल कॉटन से बना रहे हैं, तो अब उस कॉटन, रॉ कॉटन से थ्रेड बनाने के लिए कोई मशीन भी तो यूज की गई है, कोई स्पिनिंग करने वाली, कोई ना कोई, जो भी टेक्निकल एनी नेम कैन बी देयर, वो स्पिनिंग मशीन यूज की गई. अब वो जो मशीन है, अब वो मशीन एक बार कॉटन को यूज करके, दैट मशीन हैज नॉट कम टू एन एंड, वो नहीं खत्म हो गई है. उस मशीन से कई मीटर, कई 100 मीटर या कोई भी एज पर इट्स कैपेसिटी, कितने मीटर, कितने 1000 मीटर वो यार्न बनाया जा सकता है, थ्रेड बनाया जा सकता है. ठीक है, तो मशीन क्या कहलाएगी? मशीन इज ए फिक्स्ड एसेट, बिकॉज मशीन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड सो इजीली. लास्ट ईयर यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो हमने किया था फिक्स्ड फैक्टर्स, एक किया था वेरिएबल फैक्टर्स. तो क्या उसका होता है फीचर? फिक्स्ड फैक्टर्स मींस व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी इजीली इन द शॉर्ट पीरियड. तो अब वो फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं? मोस्टली दे आर वेरी वैल्यूएबल, दे आर एक्सपेंसिव एंड दे हैव मोर प्राइस इन द मार्केट, महंगे होते हैं. तो जो मशीन है दैट विल बी नोन एज ए कैपिटल गुड. आई होप इट इज क्लियर. तो अभी इतना बता रही हूँ कि फिर से सुन लो. प्रोड्यूसर गुड्स मतलब ऑल दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस समथिंग. अब नाउ दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. सिंगल यूज वर्ड से क्लियर है कि जिनको एक ही बार यूज किया जा सकता है. तो एक ही बार यूज क्या चीज होगी? रॉ मटेरियल. क्योंकि एक बार जब यूज कर लिया तो वो रॉ मटेरियल विल नॉट रिमेन इट्स इट्स वेरी ओरिजिनल सिचुएशन, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ जाएगा. तो वो जब यूज हो ही चुका है तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल यूज. ऑन द अदर साइड, द मशीन्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच दैट रॉ मटेरियल इज बीइंग यूज्ड अप, वो मशीन अपनी शेप चेंज नहीं करती है, वो मशीन अपने आप को नहीं बदल देती है. दैट मशीन डज नॉट गेट एंडेड अप इन द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन. वो नहीं खत्म होती, वो वैसे की वैसी बनी रहती है. ठीक है, सो कैपिटल गुड्स जो हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे विच इज गिवन इन द बुक, दैट इज कैपिटल गुड. तो नाउ वी हैव टू डिफाइन दिस. ठीक है, दिस इज फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग की पता होना चाहिए. नाउ कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? दैट यू कैन सी. कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. मींस ऑब्वियसली मशीनों की हेल्प से ही वी कैन प्रोड्यूस समथिंग एल्स. बिना मशीन के तो कुछ नहीं बना सकते. तो दोज गुड्स फाइनल गुड्स होती है, मतलब और उसमें कुछ चेंज नहीं करना होता है. जो मशीन है उसको एज इट इज हम लोग यूज कर लेते हैं, हम लोग का मतलब प्रोड्यूसर्स. तो दोज थिंग्स, दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जिनकी हेल्प से कुछ और चीज बनाई जाए, तो वो जो टूल है दैट इज कॉल्ड मशीन. तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड. तो यहाँ पर एग्जांपल क्या बन जाएगा? कैपिटल गुड्स मींस मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑल द टूल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. ठीक. अब नाउ दीज कैपिटल गुड्स दे हैव सम peculiar features also. Peculiar होता है some specific feature. Like we can very easily think like these capital goods, they do not get ended up, खत्म नहीं होती हैं in the single act of production. They remain for many years. Their lifespan is of many years. कई कई साल चल जाती हैं, कोई 5 साल चल जाती है, कोई 10 years चल जाती है.
इट डिपेंड्स कि वो कितनी बढ़िया क्वालिटी की है, उसके अकॉर्डिंग उसका, जैसे आप देखो इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड, जस्ट आपको बताने के लिए, जैसे घर पे फ्रिज है तो फ्रिज कोई एक दिन में तो नहीं फिनिश हो जाता है, कई कई सालों तक चलता है। कार है, स्कूटर है, कई कई सालों तक चल जाते हैं। तो ऐसे अपने ये एग्जाम्पल नहीं लेना, मतलब हमने प्रोड्यूसर्स वाला एग्जाम्पल लेना, तो जो फैक्ट्रीज में मशीनें लगी होती हैं दे डू नॉट गेट एंड इन 1 ईयर या 1 डे या 1 मंथ, कई सालों तक चलती रहती है। सो दैट मीन्स कैपिटल गुड्स का पर्टिकुलर फीचर हो गया कि दे हैव ए लॉन्ग लाइफ स्पैन and they can be used for many years. फिर दूसरा होता है they do not lose their identity in the production process. जैसे रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, मतलब अपनी that does not remain in the same shape, but machine remains in the same shape. टेक्सटाइल मिल की मशीन, वो मशीनों के डिजाइन अपने आप नहीं बदल जाते, वो वैसी ही रहेगी, ऑब्वियसली जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर और है कि जो ये कैपिटल गुड्स होती है देयर डिमांड इज नॉट डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड इज ऑलवेज दैट डिमांड विच इज डायरेक्टली मेड बाय कंज्यूमर्स। तो अब मशीन्स की डिमांड या कैपिटल गुड्स की डिमांड इज नॉट मेड बाय द हाउस होल्ड कंज्यूमर्स डायरेक्टली। नाउ हाउ वी मेक डिमांड ऑफ दोज कैपिटल गुड्स? इनडायरेक्टली। जब हम उन मशीनों से बने हुए सामान की ज्यादा डिमांड करते हैं तो उन मशीनों की डिमांड ज्यादा हो जाएगी बाय द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि जब प्रोड्यूसर्स को पता है कि ये सामान बना बना के इफ आई सेल इन द मार्केट तो देयर इज मोर डिमांड, तो ऑब्वियसली ही विल मेक मोर डिमांड ऑफ मशीन्स टू प्रोड्यूस मोर, ज्यादा बनाने के लिए ज्यादा मशीनें लेगा। तो इस करके बिहाइंड द कर्टेन डिमांड इनकी रेज होती है, सामने सामने से नहीं होती है, ठीक है। तो इस करके जो कैपिटल गुड्स है या मशीन्स एक ही बात है, तो देयर डिमांड इज इनडायरेक्ट डिमांड या डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड मतलब वो इस करके डिमांड की जाती है क्योंकि उनसे बनने वाली चीजों की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो इस करके डिराइव्ड कह दिया जाता है, ठीक। एक और है कि अब ये जो कैपिटल गुड्स होती है ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, they get depreciated over a period of time. This is a third point which is given. They need repair or replacement and they get depreciated. You can underline this. Okay. अब यहाँ पे new word has come, depreciation. If I am not wrong, तो I hope you would have read it in your business studies also. पढ़ा? ठीक है, तो फिर मैं quickly बता देती हूँ. Let me tell. तो अब जो मशीन्स होती है या कैपिटल गुड्स उनकी डेप्रिसिएशन क्या होती है? लेट अस फर्स्टली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज या रिडक्शन, कमी होना, डिक्रीज या रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ए कैपिटल एसेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी चीज के इंपॉर्टेंस में कमी होना, उसकी वैल्यू में कमी होना, तो वैल्यू को दूसरे वर्ड्स में वी कैन से प्राइस, उसमें कमी हो जाना, कब? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नाउ देयर आर 3 रीजंस फॉर दिस डेप्रिसिएशन, एकदम से नहीं हो जाता है, देयर आर मेनी रीजंस, 3 आर प्रोमिनेंट। नंबर 1 इज नॉर्मल वियर एंड टियर, कि व्हेन इन रूटीन वी यूज एनी मशीन, रोज ही उसको यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी विल डिक्रीज, बार बार यूज करने से उसका जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो अपने आप ही धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज नेचुरल, कोई जान के नहीं करता, दिस इज वेरी मच नेचुरल। सो प्रोडक्टिव कैपेसिटी में डिक्रीज आना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकेंड होता है पैसेज ऑफ टाइम। नाउ पैसेज ऑफ टाइम का मीनिंग क्या होता है? पैसेज ऑफ टाइम मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि जब मशीन को परचेज की तो ये पहले ही पता है हमें कि ये मशीन जो है ये इसका लाइफ स्पैन ऑन एन एवरेज मान लो 5 इयर्स है या 10 इयर्स है, पहले ही पता होता है तकरीबन कितने साल चलेगी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस चीज की वैल्यू में अपने आप ही कमी आ जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग ऑल दोज इयर्स many things have changed, many seasons change, many natural factors change, climatic conditions change, ये सारा कुछ नेचुरल तरीके से जो भी नेचर में चेंज आता है वो दैट कम्स अंडर दिस पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। फिर समय के साथ साथ चीज पुरानी हो जाती है, ऐसे सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स गेट ओल्ड, देयर इंपॉर्टेंस कम्स डाउन, पैसेज ऑफ टाइम। थर्ड होता है हमारे लिए जिसको हम कह सकते हैं दिस ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में भी ऑलरेडी नो। फोरसीन, फोरसीन होता है पहले से जिसका पता हो। फोरसीन ऑब्सोलिसेंस कि भी हमें पता है कि वी हैव परचेज दिस मशीन नाउ, आज की डेट में परचेज की है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये है तो नहीं एग्जांपल बट जस्ट आपको समझाने के लिए, आपने आज यू हैव परचेज्ड वन मोबाइल फोन, आज का जो भी लेटेस्ट डिजाइन चल रहा है, फीचर्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यू हैव बॉट वन मोबाइल फोन, ठीक है। अब आपको ये पता ही है ऑन एन एवरेज जनरल सबको ही पता है कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद
इस टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंज विल कम, कि मेरा जो फोन है ये आउटडेटेड हो जाएगा 3 इयर्स के बाद या 4 इयर्स के बाद। क्यों? बिकॉज आफ्टर 3 और 4 इयर्स सम न्यू फीचर्स में गेट एडेड, some new design of mobile phone can come into existence। इतनी रिसर्च होती रहती है, तो मोबाइल जो कंपनीज बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं कुछ ना कुछ चेंज लाते ही रहते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट। तो नाउ ये दिस इज वेरी मच क्लियर इन अवर माइंड कि भी ओवर 3 इयर्स या 4 इयर्स अवर टेक्निक या टेक्नोलॉजी ऑफ अवर मोबाइल फोन या डिजाइन दैट विल गेट चेंज्ड, बिकॉज ये वाली टेक्निक पुरानी हो जाएगी, कुछ नई टेक्निक वाला फोन विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो सेम वे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, दे ऑल्सो नो दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द टेक्नोलॉजी विल चेंज। रिसर्च होती रहती है तो टेक्नोलॉजी विल चेंज, एंड ड्यू टू दैट चेंज इन टेक्नोलॉजी या देयर मे बी चेंज इन डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स, कि अब उस मशीन से बनने वाले जो डिजाइन वाली चीज है, हो सकता है कि 2 साल बाद 4 साल बाद जो लोग हैं परचेज करने वाले, उनका डिमांड का कुछ और पैटर्न हो। now they may not be wanting that very design of a product, कुछ कुछ खास तरह का कोई अब मान लो टी शर्ट है, वही बनाने वाली एक मशीन से बनी, हो सकता है 6 मंथ्स के बाद आप कोई और डिजाइन की टी शर्ट पसंद करो, तो अब उस मशीन से तो उसी डिजाइन की बन रही है, ठीक। तो नाउ प्रोड्यूसर हैज टू कीप दिस इन माइंड कि भी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो सकती है या लोगों का डिमांड का पैटर्न भी चेंज हो सकता है। सो दैट इज वाई आई नीड टू चेंज माई मशीन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मुझे भी बदलना पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो सेम 3 थिंग्स होगी हमारे लिए, एक पैसेज ऑफ टाइम, नॉर्मली समय के साथ साथ टाइम के साथ साथ मतलब ऑब्सोलिसेंस आती है, तो वो है ही है नेचुरली। सेकंड इज नॉर्मल वियर एंड टियर होती है व्हेन वी यूज एनी कमोडिटी, एंड थर्ड वन इज चेंज इन टेक्नोलॉजी या ऑब्सोलिसेंस, या जिसको बोल सकते हैं चेंज इन डिमांड के करके, ठीक है। एक और पॉइंट रह गया बीच में पैसेज ऑफ टाइम में। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि for example we have purchased any machine, we मतलब producer has purchased any machine, he has not even started using that, अभी स्टार्ट नहीं किया, no production has been done with the help of that machine, वो मशीन लगा ली, इंस्टॉल कर ली, बट उसको यूटिलाइज नहीं किया। अब मान लो कोई नेचुरल क्लेमिटी आ गई, कोई फ्लड्स आ गई, कोई शॉर्ट सर्किट होने के करके कोई फायर की प्रॉब्लम होगी, कोई आग लग गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, रेन ज्यादा हो गई, कोई रूफ की लीकेज हो गई, मशीन पे पानी पड़ गया, खराब हो गई, कोई भी एनी रीजन, नेचुरल रीजन कैन बी देयर, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। अभी वो मशीन को से हेल्प से कुछ बनाया नहीं था, नई की नई मशीन लगाई, वो खराब हो गई, ठीक। तो इसका मतलब अब उस पर्सन को, अब जब वो खराब हो गई तो नहीं हम कहेंगे कि वो डेप्रिसिएशन हुई है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन का कैपिटल लॉस हुआ है, उसका सारा सीधे वर्ड्स में हम कह देते हैं कि पैसा बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, ऐसे बोल देते हैं। डेप्रिसिएशन तब होती है जब मशीन को यूटिलाइज किया जाता है, व्हेन समथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जैसे आप एक्टिवा ली, बाइक ली आपने, अभी चलाई नहीं, एक बार भी घर लाके खड़ी की, ठीक, अब वो खराब हो गई, किसी भी बारिश पड़ गई, कुछ भी, कोई भी रीजन आप सोच लो, तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरी एक्टिवा की वैल्यू कम हो गई कि इसके ऊपर रेन पड़ गई थी या ये किसी भी नेचुरल रीजन से खराब हो गई, नो, बिकॉज यू हैव नॉट यूज्ड दैट विल बी योर शेयर कैपिटल लॉस। बट ऑन द अदर साइड इफ यू कीप ऑन यूजिंग योर एक्टिवा, आप 4 साल चला रहे हो बड़े आराम से, बहुत उस पर काम किया आपने, तो फिर हम कहेंगे कि भी जिस प्राइस पे आपने एक्टिवा परचेज की थी, यू वोंट बी एबल टू सेल योर एक्टिवा एट द सेम प्राइस। मान लो आपने 80,000 की ली, 4 इयर्स आपने चलाया, अब आपकी एक्टिवा मान लीजिए 30,000 में बिक रही है, तो वो 50,000 कहाँ चले गए? दैट मीन्स 50,000 की क्या हुई है, ये 4 सालों में डेप्रिसिएशन हो गई, ठीक है। अब वो डेप्रिसिएशन में ये तीनों ही रीजंस आ गए, नॉर्मल वियर एंड टियर भी आ गई, टाइम भी बीत गया, कुछ टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ गया होगा, डिजाइन में भी चेंज आ गया, ये सब कुछ ही हो गया। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो डेप्रिसिएशन है ये होना नेसेसरी है, नेचुरल सी बात है कि जब किसी चीज को यूज करेंगे तो उसमें कुछ गिरावट होगी, उसकी वैल्यू कम होगी, दिस इज बट नेचुरल। तो अब जो कैपिटल गुड्स को खरीदने वाले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दोज हु बाय दीज कैपिटल गुड्स, इफ दे वांट टू कीप देयर मशीन इन द इंटेक्ट फॉर्म, उसको चलती हुई हालत में रखना चाहते हैं, इंटेक्ट मतलब कि वो काम करती रहे, वर्क करती रहे, फॉर दैट दे नीड टू मेक सम डेप्रिसिएशन प्रोविजन, कुछ पैसों का अलग से उनको अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा, वो पैसे उस मशीन की रिपेयर के ऊपर उनको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि चलते चलते कुछ ना कुछ खराबी आ ही जाती है, तो सम मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट मशीन।
सो वट एवर मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस चलाने के लिए, चलती हालत में रखने के लिए, और कोई खराब हो गया कुछ रिपेयर करवाने के लिए, सो दैट फंड विच इज केप्ट एज डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यहाँ उसी को क्या देते हैं डेप्रिसिएशन फंड, यहाँ क्या देते हैं कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ठीक, जैसे आपको पता है कि मैं एक्टिवा का इसलिए एग्जांपल ले रही हूँ ताकि सभी को पता है, सभी बच्चे यूज करते हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ खराबी होती रहती है, आप रिपेयर करवाते रहते हो। आप सोच के देखो, इन केस यू डोंट हैव मेंटेनेंस ऑफ योर बाइक और एक्टिवा, आप उसको ठीक ही नहीं करवाते, तो एक टाइम आएगा कि वो चलना बंद हो जाएगी, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो अगर आप उसको चलती हुई हालत में रखना चाहते हो तो आपको रिपेयर करवानी ही पड़ेगी। एंड इफ यू गेट रिपेयर देन यू हैव टू स्पेंड मनी, पैसे खर्चे बिना तो रिपेयर नहीं होगी। तो जो भी मनी आप खर्च कर रहे हो रिपेयर के ऊपर, दैट विल बी नोन एज डेप्रिसिएशन फंड, या सेम इज कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और द सेम इज कॉल्ड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कोई भी नाम हो सकता है, बट पॉपुलर नेम इज डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। सो what were we doing? Capital goods. ठीक, चलो, now this topic is over. यहाँ पे you can get a question of 3 marks, define capital goods, what are their features, ऐसे करके question can be there. Then on next page, one tabular form, one table is given, nothing is there, some examples are given for your understanding that you can see yourself. Our next topic is very important, gross investment and net investment. अब मैंने depreciation का इसके बीच में ही बता दिया because that was a common topic that was required for capital goods as well as for the next topic. So that will not be repeated. Now gross investment. You can make this flow chart. Gross investment. Please draw this. Investment. It can have two forms. One form, this capital I stands for investment. Two forms are gross investment. This is net investment. Capital I means investment. Now gross investment becomes with the help of addition of these two aspects. One is called gross fixed investment or the same is called gross capital formation. Okay, jitne names hai, you have to learn all these because different words are used at different times. So you should be clear that these are the same things. Plus change in stocks. If we add these two things, then we get the term which is called gross investment. Now I am coming to the first main term. यहाँ से start करते हैं कि क्या होता है ये. Now investment का meaning क्या होता है? Investment means addition to stock of capital. Please delete this word making allowance for depreciation. You can directly write, please write one definition. Investment means addition made to existing stock of capital during the year. This is a better definition. Investment means addition made to the existing stock of capital during the year. Full stop. It increases the productive capacity. It increases the productive capacity. Okay. Why I have asked you to delete those words? Because right now in the beginning you should start with a simple definition first. वो बाद में आ जाएगा. Later on you will be able to understand. ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या है? Investment means addition to stock of capital. ठीक है जी. ध्यान से सुनना है आपने. तो वर्ड आया एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल. तो पहले क्वेश्चन अराइजेस कि भी कैपिटल क्या होती है. इमेजिन ए टाइम
कि अभी तक कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ भी। मान लो आप प्रोड्यूसर हो, आप सोच रहे हो कि यू हैव टू स्टार्ट सम मैन्युफैक्चरिंग, अभी आपने ना तो बिल्डिंग बनाई, कोई जहाँ फैक्ट्री लगानी है, कोई बिल्डिंग नहीं, आपके पास कुछ प्लेस नहीं है, फैक्ट्री की कोई साइट नहीं, कुछ नहीं, यू आर जस्ट थिंकिंग। तो इसका मतलब क्या इन्वेस्टमेंट हो गई? सोच के बताइए। यू आर जस्ट थिंकिंग इन योर माइंड कि भी मैं ये काम स्टार्ट करना है, आई वांट टू मैन्युफैक्चर दिस थिंग, मेरी 5 lakhs की मशीनें आएंगी, लाख रुपए का मेरा रॉ मटेरियल आएगा, मुझे लेबर लगानी पड़ेगी, मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी यू आर जस्ट थिंकिंग। तो प्लीज टेल मी, हैव यू रियली स्पेंट एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट? यू कैन जस्ट शेक योर हेड। कुछ पैसा खर्च हुआ आपकी पॉकेट से? नहीं ना खर्च हुआ। अभी सोच ही रहे हैं तो सोचने में तो कोई जोर नहीं लगता, सोचने में तो जो मर्जी सोचे लो, है ना, हार्डली मैटर्स। तो इसका मतलब अभी हमने कुछ किया नहीं है, इन रियल फॉर्म वी हैव नॉट स्पेंट एनीथिंग। ठीक, अच्छा, अब आपने क्या किया? अब नाउ यू हैव टेकन ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी, ठीक है, आई हैव टू स्टार्ट दिस। तो अब आप क्या करते हो? आपने कोई फैक्ट्री की साइट कोई बनी बनाई कोई जगह बनी हुई थी, तो आपने वो फैक्ट्री परचेज कर ली, वो जगह ले ली जहाँ पर काम स्टार्ट करने, आपके पैसे खर्च हुए। फिर वो फैक्ट्री की बिल्डिंग में कोई मशीन भी लगाओगे आप, उसके ऊपर भी आपने पैसे खर्च किए। मान लो दोनों चीजों के कि काम को स्टार्ट करने के लिए बोथ दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं। फैक्ट्री भी फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग, उसको भी बार बार नहीं चेंज किया जा सकता, मशीनरी इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट। ठीक, तो आपके पैसे खर्च हो गए। ठीक, मान लो खर्च हुआ जस्ट फॉर एग्जाम्पल 5 lakhs ऑफ रुपीज। ठीक है जी, तो अब आपकी ये 5 लाख रुपए, ये सारा आपने साल के शुरू में किया, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। जब भी आपने काम स्टार्ट किया, आपका ईयर तभी से शुरू होगा ना भी, आप सोच रहे हो। तो आपने ये इन द बिगनिंग ऑफ द वर्क, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर यू हैव स्पेंट 5 lakhs ऑफ रुपीज। तो ये कहलाएगा आपकी कैपिटल। शुरू में आपने कितने पैसे लगाए? ठीक है, 5 लाख रुपए आपका खर्चा हो गया। ठीक, अब जैसे जैसे साल बीत रहा है, आपको लगता है कि नहीं एक मशीन से काम नहीं होगा, उसके साथ कोई और एक और छोटी मशीन लगानी पड़ेगी, या कुछ और अपना फैक्ट्री में कुछ परमानेंटली कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का परमानेंट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पावर सप्लाई, कुछ भी फिक्स्ड जो एसेट के तौर पे आएगा। तो शुरू में आपने लगा दिए 5 लाख रुपए, आफ्टर दैट यू हैव स्पेंट 1 lakhs ऑफ रुपीज। ठीक है, तो आपका जब तक आपका साल खत्म हुआ, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? 5 lakhs प्लस 1 lakh, 6 lakhs होगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 lakhs ऑफ रुपीज के बराबर है। इन्वेस्टमेंट होती है मनी विच इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, पक्के तौर पे जो चीजें चाहिए, जिनके बिना काम नहीं हो सकता, वो इन्वेस्टमेंट होगी। तो दैट मीन्स आपने क्या कर दिया? एडिशन किया। किसने किया? स्टॉक ऑफ कैपिटल में किया। ठीक, दैट इज इन्वेस्टमेंट। या उसी को कह देते हैं, सेम टर्म इज आल्सो नोन एज, यू कैन राइट हियर, और कैपिटल फॉर्मेशन। यू कैन राइट हियर कैपिटल फॉर्मेशन। अब नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट, दिस कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट इन टू फॉर्म्स या टू वेज। टाइप्स नहीं है ये, एक चीज को अंडरस्टैंड करने के दो तरीके हैं। वन इज ग्रॉस। अब ग्रॉस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ग्रॉस मीन्स टोटल। ठीक, अब टोटल किस चीज का? टोटल ऑफ दीज टू थिंग्स, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो नाउ वी नो, वर्ड से क्लियर है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरी, इन्वेस्टमेंट ऑन अदर परमानेंटली रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, चाहे वो पावर सप्लाई का हो या कुछ और अरेंजमेंट हो जो पक्के तौर पे चाहिए। ठीक है, जिसपे ज्यादा खर्च आता है वो वाला। तो क्या कहेंगे? या बिल्डिंग है, कोई कुछ भी है, फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो मनी खर्च किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड विच आर दोज मोस्टली दैट द टाइप्स विच कम दे आर दिस मशीन या मशीन्स एंड बिल्डिंग। फैक्ट्री की बिल्डिंग, प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, कोई भी नाम उसको कह रहे थे। तो वो होते हैं फिक्स्ड एसेट। तो द मनी विच इज स्पेंट ऑन दैट, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब सिर्फ इसी के ऊपर पैसे खर्च नहीं होते, दूसरा मनी खर्च होता है जो स्टॉक होता है। तो आपको, आई होप यू हैव डन इन बिजनेस आल्सो। स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक 3 तरह की चीजों का हो सकता है। स्टॉक ऑफ, देयर कैन बी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देयर कैन बी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बनी हुई तैयार सामान जो होता है बिल्कुल सेल करने के लिए रेडी है। देयर कैन बी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स,
then there can be stock of semi finished goods, there can be stock of raw material. Semi finished क्या होती है कि raw material में some processing has been done but finally the thing has not been prepared, फाइनल फॉर्म में उसको नहीं लेके आए हैं, थोड़ा बहुत आधा अधूरा काम करके रखा हुआ है, एज पर द नीड एंड डिमांड फिर उसको इमीडिएटली उसको प्रोसेसिंग कर दी जाती है, बट फाइनल शेप हैज नॉट बीन गिवन येट। ठीक, तो 3 थिंग्स को मिला के बनता है हमारा ये चेंज इन स्टॉक। चेंज तो बात की बात है, स्टॉक मतलब स्टॉक मीन्स इकट्ठा पड़ा होना सामान का, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, तीनों को मिला दे तो बन जाता है स्टॉक। ठीक, तो आपके पास इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना स्टॉक था, मान लो 1 जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी को आपके पास उसकी मनी वैल्यू फिजिकल फॉर्म में नहीं लेना, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में तो इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो मनी वैल्यू में देखना है, मान लो आपके पास 5000 रुपीज का स्टॉक पड़ा हुआ है, उसी में रॉ मटेरियल भी है, कुछ बना हुआ भी सामान है, कुछ थोड़ा बहुत बना हुआ सामान है, सब मिला के उसकी जो प्राइस बनती है वो 5000 के बराबर है। ठीक, जब तक साल खत्म हुआ 31 दिसंबर आया, आपके पास मान लो 7000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो कितना चेंज आया, 7 - 5 2000 का चेंज आया, तो दैट विल बी नोन एज चेंज इन स्टॉक। मतलब फॉर्मूला क्या होगा, यू कैन राइट हियर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कि व्हाट वाज द अमाउंट लाइंग विद यू एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस व्हाट वाज द अमाउंट विद यू लाइंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो साल के एंड में आपके पास सामान पड़ा हुआ है 7000 का, साल के बिगनिंग में आपके पास सामान पड़ा हुआ था 5000 का, तो डिफरेंस निकालो आ गया 2000। ठीक, तो अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो टॉपिक चल रहा है ये वाला, दैट इन्वेस्टमेंट इज द सम ऑफ ये चेंज इन स्टॉक एज वेल एज दिस फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है जी, क्लियर बेटे, ऐसे आपको फ्लो चार्ट बना के समझना है, दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब एक और चीज है इसमें, वो भी ऐड इसी के अंदर ही होती है। अब ये है कि व्हेन द मशीन्स आर यूज्ड, अभी जो मैंने कैपिटल गुड में भी बताया था, अब आप ध्यान से सोच के देखो, ये वाली साइड तो आ गई रॉ मटेरियल की या सामान की बनी हुई, ठीक है, तो जो बनी गया सामान उसको तो कुछ नहीं करना, जो रॉ मटेरियल है दे गेट यूज्ड अप, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती रॉ मटेरियल की, बल्कि उनकी शेप ही चेंज हो जाती है, वो खत्म ही हो जाते हैं, अपना एग्जिस्टेंस फिनिश कर लेते हैं। बट जब ये मशीन्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, उसके ऊपर जो भी मनी लगाया गया, व्हेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन दे आर यूज्ड, तो क्या होता है, इनकी हो जाती है डेप्रिसिएशन, दे गेट डेप्रिशिएटेड, इनकी वैल्यू में कमी आती है। तो वो जो डेप्रिसिएशन के लिए भी मनी रखा हुआ है, रिजर्व फंड रखे हुए हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, वो इसी के अंदर ही है। ठीक है, वो सेपरेटली नहीं है, इसके अंदर ही डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी इस अमाउंट के अंदर ही रखी हुई है, दैट इज इंक्लूडेड। तो इसका क्या टर्म का ये एडजेक्टिव बन जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर, दैट इज नॉट एक्सक्लूडेड, उसको माइनस नहीं किया गया है, including the value of depreciation when we assess this gross fixed investment and this change in stock, दोनों को ऐड करते हैं तो then the term is known as gross investment। और net investment क्या होता है, net investment very simple, कुछ भी नहीं है, net investment is same as gross investment but there we have to exclude depreciation। बस एक ही लाइन का फॉर्मूला, you can write net investment is equal to gross investment minus depreciation। Simple this। अब ये क्या है, ग्रॉस वाले वही सारा कुछ, no need to write again, we just have to write कि net investment is the difference between gross investment and depreciation। So now we have already understood the meaning of depreciation, already understood the meaning of this gross investment, right Vijay? So with this, time is also going to be over. We will continue with this same net investment tomorrow again. So you all are requested to read up to this part very carefully.